شہر حیدرآباد کے نامپلی میں واقع رزاق منزل حج ہاؤس کی نارتھ سائٹ بلڈنگ کے تعمیری کاموں کے لیے آج سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس موقع پر شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ حضرت مولانا مفتی خلیل احمد، وزیر داخلہ محمد محمود علی، مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی، نامپلی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج، حج کمیٹی چیئرمین محمد سلیم، وقف بورڈ چیئرمین محمد مسیح اللہ خان، مائنورٹیز کمیشن چیئرمین طارق انصاری، TRS MLC ایم ایس پربھاکر، تلنگانہ حکومت کے مشیر برائے اقلیتی امور AK خان، مائنورٹیز ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری عمر جلیل کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ واضح ہو کہ اس عمارت کی تزئین و تعمیر کے لیے حکومت کی جانب سے 23 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ سنگ بنیاد رکھنے کے بعد احاطہ حج ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں ریاست کے ائمہ معززین کی دینی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے ہر ماہ دیے جانے والے 5,000 روپے اعزازیہ میں مزید 7,000 نئے ائمہ معززین کو شامل کرتے ہوئے پروسیڈنگز جاری کی گئی۔ اس طرح اب ہر ماہ حکومت ریاست کے 17,000 امام و معززین کو اعزازیہ فراہم کرے گی۔ صحیح وقت پہ لوگ بولتے KCR صاحب سب سنتے اکبر صاحب بول کے بولتے۔ محمود بھائی نے بھی میں سے کہا کہ اکبر بھائی KCR صاحب آپ کو سنتے ہیں۔ ارے بھائی سنتے نہیں سنتے کا سوال نہیں ہے، صحیح وقت پہ صحیح گولی ڈالنا یہ ہنر ہم کو آتا ہے، اس لیے سنتے ہیں۔ اب بعض لوگوں کو نہیں معلوم کب کون سی گولی ڈالنا، تو اب کیا کریں گے؟ اکبر اویسی نے محسوس کیا کہ یہ صحیح وقت ہے، 7,000 کو دے دو، تو کہا اکبر بھائی صحیح ہے دے دیں گے، مل گیا۔ بس یہی ہے، خدا نہ سمجھو، اپنے محسنوں کو پہچانو۔ میں دل سے کہوں گا کہ مجلس نے کام کروایا ہے، میں محمود بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں KT راؤ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں ہریش راؤ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں عمر جلیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں یہاں بیٹھے مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ساری TRS حکومت کا شکریہ۔ ان ائمہ، اجازت ہے نا آپ کی طرف سے؟ زور سے بولیے، اجازت ہے نا؟ ہے نا اجازت؟ ان ائمہ اور معززین کی جانب سے بھی آپ سب کا اور KCR صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وقت بتا دے گا کہ پھر سے ہم آئیں گے اقتدار پر، ہم مطلب کون مجلس اور TRS اقتدار پہ آئے گی اور سنہری تلنگانہ بنے گا، جو ہندوستان بھر میں مسلمانوں کا جو کام نہیں ہوا وہ اس ریاست میں ہوگا۔ یہ میری زبان ہے، یہ میرا وعدہ ہے۔ 25 برس سے آپ نے دیکھا ہے، ریڈی ہو، راؤ ہو، بابو ہو، روشیا ہو یا کانگریس کی آخری کرن ہو، اکبر اویسی جب بینج بجاتا ہے نا، بینج سپیرا بین بجاتا ہے تو سانپ ناچتے ہیں۔ اکبر اویسی جب بین بجاتا ہے تو ہر کوئی ناچتے ہیں، سننے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ہیں باقی، لڑیں گے آپ کے لیے، مٹیں گے آپ کے لیے، مریں گے آپ کے لیے۔ آپ کا بہار ہمارا بہار، آپ کی عزت ہماری عزت۔ رولز اینڈ ریگولیشن بنائے جا رہے، ارے کام ہو رہا ہے، لیکن الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں۔ یہاں پر پرنسپل سیکرٹری صاحب بیٹھے، گرانٹی نیٹ وقت بورڈ کو، ہمارے یہاں پر چیئرمین صاحب بھی بیٹھے، گرانٹی نیٹ 10 سال میں 470 کروڑ روپیہ گرانٹی ایڈ میں وقت بورڈ کو آیا ہے حکومت کی جانب سے۔ دعوت افطار پر اب تک 10 برس میں کتنے؟ اب تک 10 برس میں 209 کروڑ روپیہ صرف ہوا۔ کتنا؟ 209۔ اور رمضان گفٹ دیا گیا کتنے لوگوں کو؟ چلو وہ بھی سن کے آپ کو حیرت ہوگی، رمضان گفٹ، عید گفٹ جو 209 کروڑ روپیے میں مسلمانوں کو دیا گیا ہے، کتنا ہے معلوم؟ جو پوچھتے ہیں کیا کیا، سنو کان کھول کر، 31,50,000 لوگوں کو، مسلمانوں کو عید کا گفٹ رمضان میں 10 برس میں دیا گیا ہے۔
कितना? 30,50,000। क्या ये काम नहीं है? मैं आपके ज़मीर से, आपके दिल से सवाल करता हूं, क्या ये काम नहीं है? हिंदुस्तान की सियासत में, इस सियासी शोरगुल में मुसलमान की आवाज कहीं सुनाई देती है? नहीं देती है। अगर मुसलमान की आवाज सुनाई देती है तो वो सिर्फ रियासत तेलंगाना में है। वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की वजह से, आपके इत्तेहाद की वजह से, आपके दुआओं की वजह से, आपकी वाबस्तगी की वजह से, आपकी मेहनतों की वजह से, आपके कुर्बानियों की वजह से आज अल्लाह ने हमको इस इज्जत से नवाजा। आज लोग इस आवाज को खत्म करना चाहते, इल्जामात लगाते क्या किया? अरे मजलिस जब तक है ना, तो मजलिस के पास जादू की छड़ी है कि किससे भी कैसा भी काम कराना है वो हमको आता, हमको आता। हमने सबसे काम लिया है, आगे भी सबसे लेंगे, और जिसने काम किया है उसका शुक्रिया जरूर अदा करें। और आपसे भी कहूंगा कि अपने मोहसिनों को भूलना नहीं। माशाल्लाह से जितने दिन इंतजार था कि लम्हे का, घड़ियों का, जो 7,000 इमाम मौजूद की जो तनख्वाह के लिए माशाल्लाह से आज दिन आ चुका है। जितने इमाम मौजूद पेंडिंग थे, जिसको सर्विस के पेंडिंग थे, जो मामले में हमारे CM साहब की तरफ से दिया जाता था, 10,000 इमाम मौजूद को हमारे पास से दिया जाता था। माशाल्लाह से 7,000 पेंडिंग के आज वो दिन कंप्लीट हो गए हैं। माशाल्लाह से जितने लोग आए हैं सबको यहाँ से प्रोसीडिंग लेकर जाना है। और आप देख सकते हैं क्योंकि अब कितने लोग हुकूमत के बारे में, CM साहब के बारे में बोलते हैं, बिल्कुल ये छूटे चोले पहनकर आकर यहाँ जो बड़े बड़े बातें करते हैं, उनको आज इस चीज़ का अंदाजा हो गया है कि जो चीज़ CM साहब हमारे कहते हैं माशाल्लाह से करके दिखाते हैं। जो चीज़ मैनिफेस्टो में नहीं दी गई वो चीज़ करके दिखाते हैं। मैं आप लोग से ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरे पास आप लोग डॉक्टर साहब का साहब सुना है, और इसके बाद नमाज का भी इंतजाम है, और इसके बाद खुसूसी मेहमानी का भी इंतजाम है। मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप लोग दूर दराज से रहें, पूरे डिस्ट्रिक्टों से आए हुए हैं, तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आराम से आप लोग यहाँ से खाना खा कर लीजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अकबर भाई नुमाइंदगी कर चुके हैं, और भी जितने जो पेंडिंग है वो लोग भी जो है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट आने के बाद इंशाअल्लाह ताला वो लोग भी क्लियर कराएंगे। अकबर साहब, असद साहब, हमारे महबूब भाई और हमारे मसीहुल्लाह साहब, हम लोग सब एक टीम वर्क करके जो है ना काम करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आज हदीसुल कुर्बा का भी जो काम हुआ है कि अकबर भाई की काबिशों में नतीजा है, क्योंकि पहले हदीसुल कुर्बा बहुत छोटा था, 700-800 बचते था, मगर CM साहब से नुमाइंदगी करने के बाद 4,300 चिल्लर जो जमीन थी वो आरएनबी की थी, गवर्नमेंट की थी। आज तक इंडिया की तारीख में कभी भी वक्फ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले ली मगर दी नहीं, मगर यहाँ पर अकबर साहब की नुमाइंदगी पे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो है CM साहब जो है हमारे बम्पर को दिए। मैं दिल की गहराई से CM साहब का भी, अकबर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा काम हुआ है। और आज देख रहे हैं आप इतनी शानदार इमारत हदीसुल कुर्बा जो खड़ी है, उसकी प्लानिंग, उसका हर चीज अकबर साहब और असद साहब और हमारे महबूब भाई, हम सब मिलकर मसीहुल्लाह साहब एक टीम वर्क करके जो है करे, मगर इसका पूरा क्रेडिट अकबर साहब को जाता है क्योंकि अकबर साहब की मैं आज से नहीं, मैं और यूथ के प्रेसिडेंट थे MIM के हमारे अकबर भाई, तो जब हम लोग साथ में काम करते थे तो उस टाइम से मैं जानता हूँ कि अकबर साहब एक खुले दिल के इंसान है। उनको मैं अल्लाह ताला से भी दुआ करता हूँ कि उनको अल्लाह ताला साल रखे। अल्लाह ने बेशक ऑनरियम से आज से शुरू होने वाला है, जिसके लिए मैं काबिल मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि आपका जो दर्जा है वो बेइंतहा अलग दर्जा है। चाहे उसके अंदर कितना बड़े से बड़ा आदमी हो, चाहे पैसे वाला हो या कुव्वत वाला हो, उसको भी आपके पीछे नमाज पढ़ना पड़ता है क्योंकि यही है। तो इसके लिए आपका जो मुकाम है वो बिल्कुल अलग मुकाम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा न सिर्फ आप लोगों की इज्जत और कदर करती है बल्कि हमारी पार्टी के फ्लोर लीडर और हमारे पार्टी के सदर नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब हमेशा यही कहते हैं कि आप लोगों को जिस अंदाज से मसाजिद के अंदर दिया जाता है वो आपकी फैमिली के लिए बस नहीं होता है, क्योंकि आप लोग जो खिदमत कर रहे हैं वो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, अपने मजहब की खिदमत कर रहे हैं।
इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से ये खिदमत को कबूल किया है। अल्लाह जिसको पसंद करता है उसको कबूल करता है। जैसा आप जानते हैं हमारी पार्टी फ्लोर लीडर ने यतीम बच्चों के लिए हुकूमत तेलंगाना को कहा कि अनीसुल गुरबा जो रोड वाइडनिंग में जा रहा है उसके पीछे PWD की 4392 गज जमीन है। हुकूमत तेलंगाना खासतौर से KCR साहब को कहा कि अगर फर्ज करो आप यतीमों को देंगे तो यतीमों की दुआ लगेगी, क्योंकि अनीसुल गुरबा एक वाहिद मदरसा है जिस मदरसे के अंदर आज हमारा यतीम खाना चल रहा है। ऐसे लोग जिसके माँ बाप नहीं रहते वैसा बच्चा और बच्ची पढ़ सकती है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ ऐसे कौन लोग हैं इस बारे में सोचते हैं। अल्लाह का करम है वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है, न सिर्फ यतीमों के बारे में सोचती है, बेवायों के बारे में सोचती है, हर एक के बारे में सोचती है। ये अल्लाह का करम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 39 करोड़ रुपए 39 करोड़ से वो इमारत आज मुकम्मिल हुई है। मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ जनाब महमूद अली साहब को और हमारी पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। आपकी माह रबीउल अव्वल के मौके पर उम्राह करने का सुनहरा मौका। मक्की मदनी टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से सितंबर और अक्टूबर के महीने में होगी काफिलों की रवानगी। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और फिर हैदराबाद लौटने तक मुकम्मल रहनुमाई। मक्का मुकरमा में 300 मीटर और मदीने शरीफ में 100 मीटर की दूरी पर स्टार होटल में क़याम। 3 वक्त हैदराबाद का खाना और लॉन्ड्री की भी सहूलत। मुअल्लिम की रहनुमाई में उम्रा की सादत और तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें। माह रबीउल अव्वल के मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में क़याम का सुनहरा मौका। बुकिंग के लिए फ़ौरी रब्त करें मक्की मदनी टूर्स एंड ट्रैवल्स, काकाजी टावर्स, तैयबा मार्केट नियर ओल्ड चार मीनार, बस डिपो, हैदराबाद।